Live chat. So hello everyone, my name is Dhruval Rajput. I have done my MSc Applied Chemistry from MSU Baroda. Okay. My name is Dhruval Rajput. I have done my MSc Chemistry from the MSU Baroda, Vadodara. Now I am going to teach. Welcome to Scholar classes. Teach Learn at Scholar. Welcome to the Learn at Scholar. We are going to cover the class 12, all the chapters of the chemistry at JEE NEET levels. Okay, so stay tuned with me for the brush up your IIT NEET preparation. Now we are starting with the chapter 1 solution. Okay. So first we will start with the solutions. Now in the chemistry, what is a solution? Solution is containing of two or more components. Now, first of all, we will get the idea of the solutions. What we call the solution in the chemistry language. Okay, that is the yes. Okay, that is a mixture of the two or more components. That is the solutions in the chemistry. Two or more components, having two or more components, two or more components. Uh, that is one is solute and one is solvent. Yes, one is solute and another is solvent. Now, what we getting the idea what is solute and which one is the solvent. Now, how can we get the idea what is solute and what is solvent? The solute, okay, the solute is the in the less amount. The substance present in the lesser amount is the solute. Okay, हिंदी में ना हाँ yes yes solutions में दो पार्ट होते हैं that we will first talk about the binary solutions. Binary solutions that binary solutions में क्या होता है कि दो components होते हैं. Okay. Okay. So first we will start with the solutions, and in the chemistry language, solutions have two or more components. Okay, and in the class 12 we will only discuss the binary solutions. Okay, तो बाइनरी सॉल्यूशंस में क्या होगा कि टू मेजर कंपोनेंट्स रहेंगे. देन क्या होता है अगर रियल लाइफ में देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है. सॉल्यूशंस नथिंग बट वन इज सॉल्वेंट एंड अदर इज सॉल्यूट. ओके, इन द रियल लाइफ अगर हम चीनी को पानी में डालते हैं तो देन बनता है हमारा सॉल्यूशन, दैट इज द शुगर सॉल्यूशन. एंड अनदर एग्जांपल इज सॉल्ट सॉल्यूशन. अगर हम डालते हैं थोड़ा बहुत सॉल्ट इन द वाटर इज सॉल्वेंट, then we will get the salt solution, that is we can get the solution. Okay, now yes, now we will get the idea ki what is the solute and what is the solvent. Then we can get एक minute. Yes, how can we get the what is solute and what is solvent. ये वाला. ये रहेगा ना. Now we will get the idea कि what is solute and what is solvent. अगर हमें पता कैसे चलेगा what is solute and what is solvent कि
Then we need to find out the number of moles. First of all, we will get the amount. Lesser amount solute. अगर जो कम डाला है वो है solute, एंड जो ज्यादा डाला है मोर अमाउंट में है दैट इज द सॉल्वेंट. ओके. अगर बट अगर इफ द अमाउंट इज सेम, क्या होगा अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज द सेम, देन वी क्या होगा, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. हायर मोल्स सॉल्वेंट, हायर मोल्स solvent, and lesser number of moles that is solute. In the chemistry, concentration ना उस पे जाऊंगी. Then we will get the idea of the type of the solutions. अगर हम हमारा solutions अगर हमारा solvent liquid है, मतलब we will add the solid in the liquid, तो वो होगा solid in liquid solution. अगर हम डालेंगे liquid in the liquid, that also will be the liquid solution. Okay, liquid solution. And अगर हम डालेंगे gas in the liquid, तो that will be the gas in liquid solution. These are also liquid solution. अगर हम डालते हैं gas in the solid, that will be the gas in liquid solution. अगर हम yes, gas in solid solution. अगर हम डालेंगे liquid in the gas, तो liquid in the gas solution. And third type is gas in gas solution. These are also available. Okay, first we will talk about the gaseous solution. तो उसमें so first of all we will get the idea. We will talk about the gaseous solution. तो solute भी हमारा गैस रहेगा, solvent भी गैस रहेगा, so that is the mixture of O2 and N2, मतलब mixture of two gases. These are getting the gaseous solution. Okay, so now these are some mixture of O2 and N2. These are gaseous solution. Now second one is solute. हमारा solute रहेगा liquid and solvent रहेगा gaseous mixture. तो these will ये क्या होगा solute ये liquid in the gaseous रहेगा. That is the example is humid air. Yes, humid air. एयर में जो हमारी ह्यूमिडिटी रहती है वो, तो हवा में तो एयर में भी थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी रहती है. दैट इज द लिक्विड इन द गैसियस मिक्सचर. यस, एंड दीज सॉलिड इन गैस क्या रहेगा, कैम्फर. ओके, हमारा जो कपूर रहता है वो, तो कैम्फर का रहेगा कैम्फर इन एयर. तो कैम्फर स्प्रेड होता रहता है एयर में, तो वो है सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन. नाउ सेकंड टाइप लिक्विड सॉल्यूशन. तो लिक्विड क्या रहेगा, सॉलिड इन लिक्विड. तो सॉलिड अगर हम सॉल्ट या फिर शुगर डालते हैं इन द लिक्विड, दैट विल बी द सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. दैट इज द ग्लूकोज डिजॉल्व इन द वाटर. देन आता है लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर. तो लिक्विड क्या रहेगा, अल्कोहल इन द वाटर. दैट इज ऑल्सो इथेनॉल इन डिजॉल्व इन द वाटर. दैट इज लिक्विड इन द लिक्विड मिक्सचर. देन आएगा गैसेस इन द लिक्विड. तो गैसेस इन द लिक्विड कौन सा रहेगा, अगर हम कोई गैस है N2 या फिर CO2, तो that is dissolved in the water, so that is the gas in the liquid solution. These are three types of the liquid solution. And next रहेगा solid solution. Solid solution में क्या रहेगा कि major part रहेगा solid. तो solid in solid mixture, that is the alloy. These are example is alloy. इसका example क्या रहेगा, alloy. That is the copper dissolved in the gold. Okay, 22 karat gold, 18 karat gold. These are the
मिक्सचर ऑफ द सॉलिड इन सॉलिड. देन क्या रहेगा, लिक्विड इन सॉलिड मिक्सचर. तो लिक्विड इन सॉलिड ना, तो लिक्विड क्या रहेगा, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इन द any other metal, that is the amalgam. Okay, mercury mixture of the in any other mercury, yes, okay, amalgam of the mercury with the sodium, that is sodium amalgam. Then अपना रहेगा last type, gas in the solid, that is the H2 on the पैलेडियम या फिर प्लेटिनम सरफेस. H2 का जो एब्जॉर्प्शन होता है, यस, एब्जॉर्प्शन होता है ऑन दी प्लेटिनम या फिर पैलेडियम सरफेस, दैट वी विल कॉल द solution of the H2 on the palladium surface, that is the gaseous on the solid. These are three type of solid mixture. In that क्या रहेगा, हमारा solvent रहेगा solid. ये liquid में क्या रहेगा, that हमारे solvents रहेंगे liquids में, and gaseous solutions में क्या रहेंगे कि हमारा वो जो solvent है, that is the major part, वो रहेगा gaseous. Okay, then we will go on the next page. Hmm. So yes. Hmm. Okay. Now we will go for the मूल concept. मूल concept है क्या? Yes. We will get the idea of the मूल concept. Mole is just a number. Hmm. Okay. Now we will get the idea of mole. Mole is just a number. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वी नीड व्हाट 1 dozen ऑफ बनानास, देन वी विल गेट 12 numbers. Okay, and if we need the one pair of shoes, then we will get what, 2 numbers. Okay, so mole is just a number. In the chemistry, mole is associated by what? Mole is associated only with the by the Avogadro number, that is the 6.022 into 10 to the power 23 numbers of particles. ओके, वन इज इम्पोर्टेंट, वन फंडामेंटल वी वी ग्लेड कि अगर हम कार्बन 12 है, हमारे 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो 12 ग्राम कार्बन का अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे, तो दैट वी विल गेट दी अबाउट दी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कार्बन. एंड अगर हम कॉपर का देते हैं, तो कॉपर है 63.5 दी मोलर मास, कॉपर है 63.5 मोलर मास, देन वी विल गेट दी that amount of copper have only that same number of particles. मतलब 63.5 ग्राम कॉपर का भी सेम रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मीन्स व्हाट, कि अगर 1 मोल कॉपर का लेते हैं, तो फिर दैट नंबर ऑफ पार्टिकल वी विल गेट दी व्हाट 6 एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एंड द सेम कार्बन 12 का भी नंबर ऑफ सेम ही रहेगा. तो मोल को हम 3 बातों से एसोसिएट कर सकते हैं. मोल को हम 3 पार्ट में एसोसिएट करके कि मोल इक्वल टू व्हाट, with the mass, okay, with the mass in the gram, with the number of particles, and with the volume at HTP. Now we will get the formula of the mole with these 3 terms. Next page.
यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल का रिलेशन देखेंगे विद द ग्राम, विद द मास. तो मोल्स इक्वल टू विल बी व्हाट, मास बाय mass of the given solute divided by molar mass. Yes, molar mass of that substance in the solution. Then second one is what, ki moles equal to number of particles divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23. And third one is what, ki moles equal to what, volume at STP, volume at STP divided by 22.4. Okay, so that three terms of the moles, we can associate the mole with. Hmm. Yes, sir. मैम नेक्स्ट पेज स्लाइड करना. Yes. Yes. ओके, तो हम डिस्कस करेंगे मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स क्या है, दैट इज द सेम एज मास इक्वल टू मोलर मास. मोलर मास, यस. तो क्या करेंगे कि अगर हम देते हैं CO2, सो 1 मोल में क्या होता है कि कार्बन 12 अगर हम लेते हैं तो कार्बन 12 का मास होता है 12 ग्राम. तो अगर हम 12 ग्राम कार्बन 12 लेते हैं तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा 6.022 इंटू 10⁻20. दैट इज द सेम एज दी एवोगेड्रो नंबर. मतलब अगर हम कार्बन 12 का लेते हैं तो सेम 12 ग्राम कार्बन का अमाउंट रहेगा, दैट अमाउंट का अमाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे एवोगेड्रो, सेम एज द एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एंड अगर हम 63 ग्राम 63.5 ग्राम है कॉपर का एटॉमिक वेट, तो अगर हम 63.5 ग्राम कॉपर लेते हैं तो देन इट विल गिव द सेम नंबर ऑफ, दैट इज द सेम एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मतलब क्या रहेगा, दैट इज द, दे हैव शोन कि 12 ग्राम कार्बन का अगर मास 12 है तो 12 ग्राम अगर हम लेते हैं कार्बन तो सेम एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उसमें. एंड कॉपर का भी रहेगा 63, तो 63 ग्राम कॉपर अगर हम लेते हैं तो देन इट विल सेम कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. That is the mole concept. So mole concept we will associate with the molar mass, and the same mole I will associate with the number of particles. Okay, थोड़ा समझाना पड़ेगा वो डिटेल रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू. तो अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो कि हम अगर हम पोटैटो लेते हैं तो उसका वेट हम कर सकते हैं, बट अगर हम एटम का वेट करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना. दैट्स क्योंकि वो बहुत छोटा है. कि अगर हम लेते हैं कि अगर हम 18 ग्राम वाटर भी लेते हैं ना तो उसमें रहेगा एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज व्हाट दिस. मतलब 10 के पीछे 23 जीरोस रहेंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे 18 ग्राम, ओनली 18, इवन 18 ग्राम वाटर में. तो अगर हम इसका वेट करने जाएंगे तो दैट्स व्हाई वी नीड मोल कॉन्सेप्ट, वी नीड टू इंट्रोड्यूस द मोल कॉन्सेप्ट. तो दैट्स हाउ वी विल गेट मोल. ओके, देन क्या रहेगा इस
Yes. Then we will talk the volume at STP. STP मतलब what? Standard temperature pressure. ओके, तो एसटीपी पर अगर हम वॉल्यूम है, अगर हमारा वॉल्यूम है कोई गैस का, तो उसे भी एसोसिएट कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय व्हाट? मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4. देन यस, so we will get the idea of the concentration terms. Got it. Now we will get the idea of some concentration terms, okay, and the relations between the number of moles and with them. ओके, तो मोल्स क्या रहेंगे हमारे? नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी एटम है, मोल्स. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स वी विल गेट दी मास बाय मोलर मास. So with the help of the weight, that is mass by molar mass, by the number of particle, we will get the moles by what? Number of particles, number of particles upon Avogadro number. Okay. And the third one is what? We can associate moles with the volume at STP. अगर हम कोई भी गैस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम रहता है लीटर में, तो वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी इन द लीटर upon 22.4. So that's how we will get the number of moles. And with the now the question क्या आता है कि हमारे जेडब्ल्यू नीट में क्या रहता है कि अगर हमें मोल्स दिए हैं तो मोल्स के थ्रू हमारा क्या एसोसिएट रहेगा? मास रहेगा एसोसिएट, क्या रहेगा? पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रहेंगे, एंड आयंस. ये सब भी हमें पूछ लिया जाता है, तो क्या करेंगे अभी? तो अच्छा यार, उससे ओके गॉड. यस, अगर हमें ये सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं हमारे नीट और जेडब्ल्यू में. यस, यस. तो if we will get the number of moles, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगेड्रो नंबर से, देन वी विल गेट दी व्हाट? वी विल गेट दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स, एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स. वी विल गेट दी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. देन क्या रहेगा? अगर हम नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 22.4, then we will get the volume at STP. Yes, volume at STP in the liter.
देन अगर हम मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यस, मोलर मास से, तो हमें मिलेगा व्हाट, यस, वेट ऑफ द वेट, yes, then we will get the weight. Now the question what, now we will do some questions. इसका उल्टा भी सही है कि अगर हमें, यस, कि नंबर ऑफ मोल, अगर इन द क्वेश्चन, एक मिनट, वो थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। ऑफलाइन में थोड़ा पढ़ा था ना, दैट्स वाई वो वैसा हो रहा है। यस, तो वी विल डू सम एग्जांपल्स। चलो थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल इज व्हाट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ द 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। these are, first of all we will get, एक मिनट, यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस व्हाट, वेट, weight is given, weight of the CO2 is given here. So weight से हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में देख ले कि अगर weight दिया है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं या फिर वॉल्यूमेट एसटीपी दिया है, तीनों में अगर हमें क्या करना क्या है, वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स, वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट फर्स्ट ये वाले एग्जांपल्स में क्या करते हैं कि मोल्स इक्वल टू व्हाट, 4.4 mass by molar mass, first of all mass by molar mass, that is what, 4.4 gram divided by 4, 4.4 gram divided by what, molar mass is 44. Okay, CO2 has molar mass 44, so we will get the 0.1 mole, तो 1 मोल रहेगा, तो हमारा मोल रहेगा 0.44। नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल्स। यस, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल, हाउ वी विल गेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, सेम, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द एवोगैड्रो नंबर, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, that is what, 6.022 into 10 to the power 22. These are the number of molecule of CO2. These are the number of molecules of CO2 in the 4.4 gram of CO2. Okay. Okay. First we will what, here, दिया क्या है, okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 है, तो 4.4 मतलब वेट दिया है हमारा, वेट दिया है, तो वेट से हम क्या करेंगे, वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी व्हाट, मास बाय मोलर मास सिंपली, तो मास बाय मोलर मास, तो क्या करेंगे, मास इज 4.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है 44, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का क्या 16, तो दैट इज व्हाट 12 प्लस 13 दैट इज 44, तो 44 रहेगा हमारा मोलिकुलर मास ऑफ द CO2। तो 4.4 डिवाइडेड बाय 44 दैट इज व्हाट 0.1 मोल, तो 0.1 मोल है हमारा CO2 इन द 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देन वी हैव आस्क्ड व्हाट these for the number of moles and molecules। yes, so we will get the number of molecule by what, की moles multiply by Avogadro number। okay, the number of molecules of CO2,
molecules of CO2 we will get by moles multiply by moles is 0.1 multiply by Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23 that is what ये क्या है 10 to the power -1 है तो ये ऐड करेगा मल्टीप्लाई करेगा विद दी वॉट 10 to the power 23 तो क्या तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम 10 to the power -1 तो वो रहेगा आंसर रहेगा 6.022 into 10 to the power 22 मतलब these amount of molecules of CO2 these are molecules of CO2 okay now the question arises कि what will be the volume at STP STP पर अगर हमें वॉल्यूम नीडेड है CO2 का STP वही ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाला मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिकल प्रेशर तो दीज आर STP कंडीशन हाँ 273 केल्विन यस सेम ही रहेगा 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिकल प्रेशर तो दीज आर STP कंडीशंस अगर हमें आस्क है वॉल्यूम एट STP विद द हेल्प ऑफ मोल तो मोल मल्टीप्लाई बाय दैट इज थोड़ा नीट करना पड़ेगा वही अगर हमें लिखना है वॉल्यूम एट STP अगर वही CO2 का तो क्या करेंगे मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 दैट इज व्हाट मोल्स क्या है हमारे 4.4 ग्राम के मोल्स है अभी हमने निकाला है दैट इज 0.1 मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 तो इसका आंसर आएगा लीटर में यस तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट STP हाँ वो लास्ट बताया था वो पूरा बता ठीक ये अलग है क्वेश्चन हाँ गॉट इट यस तो यस वो मोलर वॉल्यूम क्या रहता है गैसियस का वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर रहता है तो अगर हमारा 0.1 मोल है तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से तो वी विल गेट द आंसर 2.24 मतलब हम लीटर में 2.24 लीटर CO2 प्रेजेंट रहेगा इन द 4.4 ग्राम ऑफ CO2 यस देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल से एसोसिएटेड है एक मिनट यस तो सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा कि व्हाट इज द मास ऑफ these 3.011 into 10 to the power 23 atoms of sodium yes so mass क्या रहे first of all we have the numbers of atoms that is what number of particles तो number of particles को हम क्या करेंगे with the Avogadro number divide करेंगे तो then that how we get the moles first of all moles ही निकालना है that's it तो moles क्या रहेंगे number of particle divided by Avogadro number क्या रहेगा ये तो कट हो जाएगा एंड ये तो इसका डबल है तो दैट इज 1/2 दैट इज व्हाट 0.5 मोल 0.5 मोल यस तो थोड़ा आइडिया है इसको हम क्या करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे दैट द we will get what moles okay so mole मिलेंगे getting or not थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा था ना that's how we will get the 0.5 moles of कौन सा पार्टिकल है सोडियम yes so we will have the sodium yes 0.5 mole now we need what पूछा क्या है कि what is the mass so we need what mass सो मोल को एसोसिएट करेंगे विद द मास मोल को एसोसिएट करेंगे विद द मास कौन सा फॉर्मूला रहेगा तो मास बाय मोलर मास वही सेम सो मास रहेगा अननोन क्वांटिटी एंड हमारा मोलर मास वी विल नो मोलर मास ओके तो मोल्स क्या है हमारे 0.5 मोल
मास क्या रहेगा? सो मास रहेगा, यस मास तो वी नीड टू फाइंड आउट, एंड मोलर मास रहेगा 23 ग्राम पर मोल. So that's 23 into, so mass will be what, 23 into 0.5. So it is 1/2 रहेगा. 1. इसको 1/2 लिखा ना, 0.5 को 1/2 लिखा है. एक मिनट. 23 का हाफ रहेगा, तो मास विल बी व्हाट, 23/2. तो क्या रहेगा, 2 1s are 2 and 2 1s are 2.5. यस. तो दीज आर मास, तो यूनिट रहेगा ग्राम. तो मतलब क्या कि दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, दीज नंबर ऑफ एटम्स में, एटम्स ऑफ सोडियम का मास रहेगा व्हाट, 11.5 ग्राम. ओके, तो हाफ मोलर रहेगा, तो दैट्स वही. ओके. तो हाँ, मास वाला ना. मास वाला ना. सो क्या करना है, अभी अभी तो हमें मास ही निकालना है ना. तो मास निकालेंगे कैसे? मास बाई मोलर मास का फॉर्मूला से. मोल, मोल्स का. तो मास है मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास. मोल्स, मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास. ओके. तो वी विल गेट, क्या करेंगे, अभी हमारा मोल्स है 0.5, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास क्या है, हाँ 23 ग्राम है सोडियम का. 23, यस. तो यस, तो दैट इज व्हाट, 11.5 ग्राम of sodium that will be present in these 3.011 into 10 to the power 23 number of particles. Okay, then we will go for the next numerical. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पढ़ो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर. हाँ, वो क्वेश्चन थोड़े डाले हैं अभी. नहीं, अभी लास्ट क्वेश्चन ही है, अभी तो वो कंसंट्रेशन कम ही है उसके बाद. ओके, तो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर. पेन पेन पेन. तो क्वेश्चन इज व्हाट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम वाटर. तो 1.8 ग्राम वाटर मीन्स व्हाट, कि हमें गिवन है क्या है, मास. तो मास से हम कैलकुलेट करेंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास से क्या करेंगे, वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. वी विल गेट द मोल्स. So moles will be what, mass by molar mass. Mass by molar mass, that is what, mass है 1.8 divided by 18. 18 रहेगा हमारा H2O का मोलर मास, that is what 2 plus 16. Yes. So that is will be what, 0.1 मोल रहेगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. H2O का नंबर ऑफ मोल्स रहेगा 1 पॉइंट, अरे 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम रहेगा मोल्स. We have asked what number of atoms. Okay, so number of molecules. First, we will get the number of molecules. Molecules equal to moles multiply by Na. Moles multiply by Na. Moles multiply. These moles will be what, 0.1 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23. So that will be what, 6.022 into 10 to the power 22 numbers of molecules of H2O.
Now we read the question carefully. We have asked the total number of atoms present in the 1.8 gram of water. Okay, not the numbers of molecules. That we will ये हमारा जो मिला है that is the numbers of molecules in the H2O. In the H2O we have one molecule of 3 atoms. Okay, clearly we can say that yes, कि अगर हम 1H2O है in the 1H2O molecule, so we have one oxygen and two hydrogens, so that is made up of 3 atoms. Hmm. ये वाला ओके, तो फिर से वो देखते हैं, फिर से समझाता हूँ कि अगर हमें क्या करना है हाँ, वी विल गेट यस, ये क्या मिला अभी कि दैट इज द नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O. अगर हमें देखना, बट हम वी हैव आस्क्ड कि दीज व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द H2O molecules. We have what? 3 atoms. Okay, in the one H2O molecule, one H2O have 3 atoms. So we will have these numbers of molecules of H2O. Then we will get the numbers of atoms. मतलब we have asked, अभी नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे? यस, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 रहेगा दीज एटम्स ऑफ एटम्स इन द H2O. मतलब these numbers of H2 atoms रहेंगे in the these numbers in the H2O molecule. So this is the answer. Then next we will go for the next yes, next we will go for the concentration terms. First concentration is molarity. And then okay, first we will get the molarity. Molarity is what? Numbers of moles per liter. Number of moles per liter, per liter of the solutions. Okay, these are okay, moles, numbers of moles per liter of the solutions. The formula of this molarity will be what? Moles, na? So W2 by M2. That is the numbers of moles into V milliliter. Moles per volume in liter. तो क्या रहेगा? मोल्स क्या रहेगा हमारा? वेट बाय मोलर मास ना, वेट बाय मोलर मास. तो W2 विल बी द वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन क्या रहेगा? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू V ml में. अगर इसको हम ml करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 रहेगा, वो डिवाइड बाय 1000 रहेगा, वो जाएगा डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. यस, तो फाइनल इसका फॉर्मूला कैपिटल M मोलारिटी का रहेगा 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू VML. ओके, VML क्या रहेगा? वॉल्यूम इन द ml. यस, मोलालिटी इज सेम, that is the what? The number of moles per kilogram of the solvent, per kilogram of the solvent. टेढ़ा जा रहा है. moles per kilogram of the solvent. इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं कि नंबर्स ऑफ मोल्स सेम ही है, बट डिनोमिनेटर में क्या है कि हमारा लीटर है, मोलारिटी में क्या है? वॉल्यूम टर्म्स है, एंड लीटर ऑफ दी व्हाट? सॉल्यूशंस. एंड हियर क्या है कि अगर हमारा वेट है, बट वेट क्या है? ओनली सॉल्वेंट का. ओके, तो इसका हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसमें ध्यान पड़े.
हम्म, 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 हाँ। सो मोलारिटी और मोलालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। इसमें क्या रहता है कि मोलारिटी में क्या है, नीचे वॉल्यूम रहता है, डिनोमिनेटर में क्या रहता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से क्या रहता है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम रहता है तो ये कितना है टेम्परेचर डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहता है। और इसमें क्या रहता है मोलालिटी में डिनोमिनेटर में रहता है मास, वेट रहता है, तो ये होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ओके, तो दी एंड देन वी विल गेट द आइडिया ऑफ द नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी क्या रहता है कि नंबर ऑफ, इसमें क्या रहता है सेम कि नंबर्स ऑफ मोल्स पर लीटर ना, तो सेम इसमें रहता है नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस। यस, अगर अभी हम क्वेश्चन अराइज होता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स देखा, दैट इज व्हाट मास बाय मोलर मास, तो व्हाट इज द नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स रहेगा, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स रहेगा क्या कि मास बाय मोलर मास, नहीं मोलर मास करेंगे तो क्या रहेगा नंबर्स ऑफ मोल्स, इसमें क्या रहेगा इक्विवेलेंट मास। यस, तो उसमें क्या रहेगा नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स, हाउ वी विल गेट द नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट विद द हेल्प ऑफ दिस मास बाय इक्विवेलेंट वेट। अभी इक्विवेलेंट मास कैसा रहे, कैसा आएगा, हाउ वी विल गेट इट, तो इक्विवेलेंट मास विल बी व्हाट, मोलर मास divided by n. N is the valency factor. Here n is the valency factor. Okay. Now we will derive the relation, small relation between the molarity and normality. अभी हमने देखा कि कैपिटल मोलारिटी को हम करेंगे क्या, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, तो क्या रहेगा वो नंबर्स ऑफ मोल्स, दैट इज व्हाट अभी हमने देखा वो फॉर्मूला 1000 इंटू W2/m2 इंटू W इंटू VML में। यस, दैट इज द मोलारिटी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डिराइव करेंगे नॉर्मालिटी का फॉर्मूला। नॉर्मालिटी क्या रहेगा, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स पे क्या रहेगा 1000 इंटू W2/m2 की जगह हमें हमें लिखना है इक्विवेलेंट वेट इंटू VML में, तो सेम ही रहेगा, नॉर्मालिटी है दैट्स वाई। तो अभी हम इक्विवेलेंट वेट को रिप्लेस करेंगे 1000 इंटू W2, इक्विवेलेंट वेट को रिप्लेस करेंगे मोलेकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, VML रहेगा सेम। ओके, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वैलेंसी फैक्टर, वो जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा n इंटू 1000, ये सारा क्वांटिटी रहेगा सेम, W2/m2 इंटू VML। ओके, तो n रहे, तो ये क्या है इन द ब्रैकेट, दैट इज व्हाट मोलारिटी का फॉर्मूला ही है। यस, सेम थिंग, तो मोलारिटी का ये n इंटू कैपिटल M, तो नॉर्मालिटी इक्वल टू n इंटू कैपिटल M, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी। यस, इसका बहुत क्वेश्चन आता है JEE नीट में, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यस, वैलेंसी फैक्टर दिया हुआ होता है, अगर हम, यस, हाँ वो ऐसा ही जा रहा है, वही देख रहा हूँ।
हम्म। ओके, सो फिर से मैं समझा रहा हूँ कि नॉर्मालिटी का मोलारिटी से रिलेशन क्या होता है। उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं जेडब्ल्यू नीट में, और बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो वी विल गेट द आइडिया, वी विल हैव द आइडिया ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी का आइडिया है कि दैट इज व्हाट मोल्स पर लीटर। तो मोल्स क्या रहेंगे, W2/M2। W2 इज द वेट डिवाइड बाई M2, दैट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो क्या रहेगा, यस, W2/M2 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन द लीटर। तो वॉल्यूम 1000 ऊपर है, तो here it is in the ml. Okay, so that is the molarity. Now we will get the formula of the normality. Normality का क्या रहेगा, अभी देख लो फटाफट कि normality क्या रहेगा, numbers of equivalents per liter of the solutions. तो numbers of equivalents क्या रहेंगे, 1000। 1000 की जगह क्या रहेगा, BML। नीचे लीटर था, उसका 1000 रख दिया, तो वॉल्यूम रहेगा ml में, इंटू W2 तो है ही मास बाई इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास को MEQ लिखेंगे, एंड देन इट विल बी 1000 एज इट इज रहेगा, W2 भी एज इट इज रहेगा। इक्विवेलेंट रेट को क्या करेंगे कि मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेट, वेट को रिप्लेस करेंगे अभी हम, व्हाट मोलिकुलर वेट, दैट इज व्हाट M2 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर N इंटू VMLB एज इट इज ही रहेगा। यस, एज इट इज ही रहेगा। तो ये क्या है, अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो एन रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, इंटू क्या रहेगा, 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई M2 एज इट इज, इंटू बी वॉल्यूम रहेगा ml में, वो भी एज इट इज रहेगा। तो दैट, यस, तो वो यही है जस्ट नॉर्मालिटी का फॉर्मूला। देन फोकस इन दिस थिंग। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोलारिटी, दैट इज व्हाट 1000 W2/M2 डिवाइड बाई लीटर, मोल्स पर लीटर। तो क्या रहेगा, व्हाट वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी, कैपिटल M। ओके, तो नॉर्मालिटी का रहेगा रिलेशन विद द मोलारिटी। यस, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं जेडब्ल्यू नीट में। अगर हम्म, हाँ, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत, 12th में भी बोर्ड्स एग्जाम में बहुत सारे MCQs पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। तो इसको हमें करना है, ये रिलेशंस याद करना है। ओके, वैलेंसी फैक्टर आपको गिवन होता है, वैलेंसी फैक्टर इज द जस्ट आयंस। ओके, अगर आगे अभी इक्वेशन में क्या Mg+2 है, तो वैलेंसी फैक्टर विल बी N=2। अगर हम हमारे इक्वेशन में क्या है, Al+3 है, तो वैलेंसी फैक्टर विल बी N=3। ओके, दैट्स इट। और अगर हमें Na+ है, तो वैलेंसी फैक्टर रहेगा, चार्ज विल बी N=1। तो उस केस में रहेगा नॉर्मालिटी और मोलारिटी सेम हो जाएगा, अगर इफ द वैलेंसी फैक्टर विल बी 1 होगा तो। ओके, देन वी विल गेट द mole fraction. Then we will get the mole fraction X. Mhm. Yes. Okay. So we will get the mole fraction X. तो रब करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग, मोल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट विद द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशंस। मतलब स्टार्ट करूं। यस, अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम बचा था, वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, इज जस्ट बेसिकली द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अगर हम बात करते हैं बाइनरी का, तो ए और बी कंपोनेंट है, उसके नंबर्स ऑफ मोल्स है Na, एंड नंबर्स ऑफ मोल्स है Nb ऑफ बी कंपोनेंट। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का रहेगा XA=Na अपॉन टोटल मोल Nt, और बी का रहेगा, मोल फ्रैक्शन बी का रहेगा Nb टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब क्या रहेगा, Na अपॉन Na+Nb विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ए, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या रहेगा, Nb अपॉन Na+Nb।
Okay, so we will have the idea of the mole fraction. मोलारिटी क्या क्या रहेगा, मोलारिटी का फॉर्मूला बोल दो चलो फटाफट. मोलारिटी कैपिटल M इक्वल टू 1000 इंटू W2/M2 इंटू वॉल्यूम इन द मस्ट इन ml. अगर ऊपर 1000 लिखा है तो वॉल्यूम को ml में ही लिखना पड़ेगा. यस, तो उसका यूनिट भी है मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर. यस, लीटर ऑफ सॉल्यूशन. नॉर्मलिटी का क्या है, कैपिटल एन इक्वल टू व्हाट, 1000 इंटू W2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब V ml में. अगर ऊपर 1000 लिखा है तो V नीचे ml में रहेगा. ओके, इसका नॉर्मलिटी का मोलारिटी का रिलेशन भी अब पता कर लिया है. कैपिटल N इक्वल टू N वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलारिटी, कैपिटल N. इसका बहुत क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में. यस, मोल फ्रैक्शन इज गॉट इट. यस, अभी मोलालिटी स्मॉल m. मोलालिटी क्या है, 1000 इंटू W2/M2 इंटू W1. ओके, molality is basically what, moles per kilogram. Moles per kilogram. Yes, kilogram of solvent. Yes. Okay, moles per kilogram of the solvent. Okay, not of the kilogram of the solution. Okay, molarity और normality में रहेगा volume of the solution. But molality में एक term is different, that is the weight of the solvent only. Then we will do some examples of this. Okay. Yes, we have some left-handed terms. Okay, अभी अभी यस, अभी इसको टर्म्स को देखना है, पीपीएम और पीपीबी. ये पीपीएम और पीपीबी क्या है, दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन एंड पीपीबी है पार्ट्स पर बिलियन. अगर हमारा सॉल्यूट हमारा अगर अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट में रहता है, देन मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत रहता है अमाउंट इन द मिलियन पार्ट, देन वी विल यूज द पार्ट्स पर मिलियन. एंड फॉर द पार्ट्स पर बिलियन अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट लाइक हीमोग्लोबिन होता है. अगर हमारा हैवी मेटल्स रहता है तो उसको हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर बिलियन में. तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा पीपीएम का, पीपीएम का फॉर्मूला रहेगा 1 पार्ट या फिर 2 पार्ट रहता है इन द मिलियन पार्ट, तो उसका हम मेजर करेंगे पीपीएम में. तो पीपीएम रहता है मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी सेम रहता है ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 10⁶. अभी रुको, इसको फिर से लिखते हैं सही से. पीपीएम इक्वल टू मास सॉल्यूट का ग्राम में डिवाइड बाय मास रहता है सॉल्यूशंस का ग्राम में इंटू 10⁶. ओके, तो ये 10⁶ पार्ट है, दैट इज द पीपीएम. एंड अगर हम पीपीबी का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या रहता है, वो अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट के लिए रहता है, दैट इज द सेम मास ऑफ सॉल्यूट, वो रहेगा ग्राम में, एंड नीचे रहेगा मास ऑफ सॉल्यूशंस, वो भी सेम ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय रहता है 10⁹. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द पीपीबी. ये सारे इजी टर्म्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अभी हम देखेंगे मास परसेंटेज. मास परसेंटेज, मास परसेंटेज सेम रहेगा कि तो सेम कि मास ऑफ द सॉल्यूट ग्राम में डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो देन मास बाय वॉल्यूम रेशियो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसका भी सेम रहता है, ऊपर रहता है मास, नीचे रहता है वॉल्यूम. तो ऊपर रहेगा मास
ग्राम में सॉल्यूट का, अपॉन नीचे रहेगा वॉल्यूम, नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस इन ml मल्टीप्लाई बाय 100, percentage है, that's why multiply by 100. Yes, so that how we will get mass to volume ratio, mass to volume percentage, and next रहेगा volume to volume percent, volume to volume percentage. तो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट ml में रहेगा, अपॉन वॉल सॉल्यूट सेम टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस, सेम ml में रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये सारे फॉर्मूला से हम मास मास टू मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इजीली विद दिस हेल्प, विद दिस फॉर्मूलास. ओके, so then you will get the idea of the ppm. Also ppb theory है कि mass of the solute upon mass of the solution into 10 to the power 6, that is the ppm formula. And then ppb, the mass of the solute to the mass of the solution into 10 to the power 9, so we will have the ppb. तो उससे हम बोलेंगे ppb. ओके, देन आगे अभी हम कवर कर ही लिया है ppm कौन सा रहेगा, ये नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो क्लियर ही है. अभी हम लास्ट में देखा नंबर ऑफ मोल्स विल बी व्हाट, नंबर ऑफ मोल विल बी मास बाय मोलर मास, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी व्हाट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी मास बाय मोलर मास, नहीं उससे मोल्स निकलते हैं, मास बाय इक्विवेलेंट मास. ओके, तो उसका भी एक रिलेशन है, एक मिनट. यस, तो मोल्स का भी है, मोल्स, मोल्स को छोड़ो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का भी रिलेशन है टू दी numbers of equivalents will be what, mass by equivalent mass. तो इक्विवेलेंट मास को हम रिप्लेस करेंगे मोलर मास वाले टर्म्स में, तो मास तो ऊपर ही रहेगा. अभी इक्विवेलेंट मास को हम रिप्लेस करेंगे वैलेंसी फैक्टर वाले टर्म्स से, दैट इज व्हाट, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर n. वैलेंसी फैक्टर n, यस, तो वैलेंसी फैक्टर n ऊपर जाएगा, और मास बाय मोलर मास बचा, तो मास बाय मोलर मास है इनटू मोल्स. So that is also the relations of the numbers of equivalents to the numbers of moles. Yes. So we will take the relations this. Okay here. तो number of equivalents रहेगा, number of equivalents रहेगा क्या, n into and so number of equivalents रहेगा valency factor multiply by what, numbers of moles, number of moles. Yes, so that is the direct relations of the numbers of equivalents to the numbers of moles. No? Valency factor, where n will be the valency factor. वैलेंसी फैक्टर, यस. अभी हमने देख लिया पीपीएम पीपीबी का आइडिया आ गया, मास परसेंटेज का आइडिया आ गया, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज का भी क्लियर है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज भी क्लियर है. यस, एंड नंबर, इसका रिलेशन भी हमें आइडिया आ गया कि नंबर्स ऑफ मोल्स क्या है, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है, उसका रिलेशन भी है कि नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी व्हाट, इक्वल टू n इनटू नंबर्स ऑफ मोल्स, n विल बी व्हाट, n रहेगा हमारा वैलेंसी फैक्टर. ओके, तो इसका रिलेशन, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल्स पर. इक्विवेलेंट मास का रिलेशन लिखा है कि दैट इज द मोलर मास डिवाइडेड बाय n, है ना. तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया है न्यूमरेटर में, so that's how we will get the relation between the numbers of equivalents and numbers of moles. Then we will go for the next topic.
हाँ यस। तो इसका रहेगा इक्विवेलेंट मास का रिप्लेसमेंट है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। तो अभी मोलर मास के नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा न्यूमरेटर, तो वो एन ऊपर जाएगा और बचेगा क्या ब्रैकेट में, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो मास बाय मोलर मास को अभी हम रिप्लेस करेंगे, दैट इज वी ऑल नो कि ये है नंबर्स ऑफ मोल्स। तो वी विल गेट द रिलेशंस, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी n multiply by numbers of moles. Okay, so that is the direct relation between moles and equivalents. Then नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, यस मोलारिटी नॉर्मालिटी का रिलेशन, यस। हाँ, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ही करना पड़ेगा। चलो यस, यस। तो अभी हमने रिलेशन डिराइव किया है मोलारिटी नॉर्मालिटी का, कि नॉर्मालिटी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई m। तो ये हमने डिराइव कर दिया है, वेर n इज द what valency factor, valency factor, yes, n is the valency factor, n is the valency factor. Now we will get the what, yes, molarity with density। ये डेंसिटी के साथ वो मोलारिटी का रिलेशन है, इसके बहुत क्वेश्चन है, लॉट ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग एवरी ईयर। तो वी विल डिराइव यस मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, 1000 इंटू W2 by M2, W2 by M2 इंटू VML, यस। तो 1000 सेम एज इट इज रहेगा। और अभी वेट, अभी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, यस। तो यस, दैट इज मास रहेगा ग्राम में और वॉल्यूम रहेगा ml में। तो अगर हम ग्राम पर ml है तो ये इसका यूनिट है ग्राम, W2 का दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट, एंड V ml है वॉल्यूम इन द ml। तो W2 by V को हम रिप्लेस करेंगे विद द डेंसिटी। ओके, तो 1000 इंटू D/M2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड डेंसिटी। अभी नेक्स्ट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर नहीं है। Yes. Some concentration terms are temperature dependent and some are not. Okay. So we will bifurcate these temperature dependent terms with the temperature independent terms. Temperature independent terms. Independent. Yes. Some concentration terms are temperature dependent and some are temperature independent. Yes. इसमें क्या करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन से रहेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम है, मतलब क्या है, मोलारिटी, मोलैरिटी, नॉर्मालिटी, एंड जिसके डिनोमिनेटर में वेट है, वेट। तो डिनोमिनेटर में वेट है, उसके उसके एग्जांपल्स है
मोलालिटी परसेंटेज W/W, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसमें भी वॉल्यूम नहीं है डिनोमिनेटर, तो वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स रहेगा अपना। और क्या है? यस, और है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज, इसमें भी है मास बाय वॉल्यूम, दैट इज W/V। ओके, W/V वाला परसेंटेज, उसमें भी डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम आता है, तो वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंस हो जाएगी। तो इसका भी बहुत क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड में। ओके, सेम एमसीक्यू पूछ ही लेते हैं कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सा है। ठीक है, तो उससे हम बता सकते हैं कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है तो वो रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, और अगर हमारे टेम्परेचर डिनोमिनेटर में क्या है, मास रहेगा, तो वो रहेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसका एग्जांपल बताओ फटाफट, कि मोलालिटी है, वेट परसेंटेज है, और कौन सा? यस, पीपीएम। अनदर एग्जांपल पीपीबी। यस, तो उसमें भी ग्राम ही ऊपर रहता है, नीचे भी ग्राम ही रहता है, तो उसमें भी वेट आता है नीचे, तो वो भी रहेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। ओके, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ओके, और दीज आर वेरी विद द टेम्परेचर। देन यस, टेम्परेचर हो गया। देन नेक्स्ट स्लाइड वी विल गो फॉर द, yes, for the some examples. Yes, so examples है, how many grams of sodium NaOH are needed for the prepare 250 ml of PVC solution. Okay, solutions में क्या रहेंगे अभी हम? yes, तो molarity given है already, we can see that, see that molarity given है। ओके, सॉल्यूशन सिंपल ही है कि मोलारिटी क्या है, कैपिटल M इक्वल टू 0.2 मोलर। ओके, वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन 250 ml। यस, देन क्या गिवन है, मोलिकुलर मास M2 गिवन ऑफ द सॉल्यूट, हमारा क्या है, NaOH है हमारा सॉल्यूट, मोलिकुलर मास इज 40 U है, 40 ग्राम पर मोल। ओके, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH नीडेड? ओके, तो W2 we need to find out. Okay, so first of all we will get the formula of the molarity, that we 1000 into W2 by M2, W2 by M2 into volume ml में। yes, so yes, वैल्यू से पुट करेंगे, मोलारिटी इज व्हाट, 0.2, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यस, तो मोलारिटी 0.2, 1000 as it is, W2 we need to find out, and M2, yes, M2 is 40 clearly, and volume in the ml is 250। okay, so 1000 कटेगा 250 से into 4 जा, yes, तो 4 10, so W2 will be what, W2 will be what, 0.2 multiplied by 10, that nearly, that will be equal to the 2, yes, 2 gram, मतलब 2 gram NaOH will be needed। ओके, W2 आ गया है हमारा 2 ग्राम्स। यस, मतलब 2 ग्राम ऑफ NaOH, 2 ग्राम ऑफ NaOH नीडेड। यस, 2 ग्राम ऑफ NaOH नीडेड फॉर द प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन। ये फिर से करूँ यहाँ से ना? हम्म, हाँ वही, थोड़ा प्रैक्टिस नीडेड रहेगा। तो W2 वी नीड टू फाइंड आउट द W2 क्या, यस, फॉर्मूला है 0.2 एज इट इज रहेगा, 1000 वो कट गया है, तो ऊपर रहेगा W2, नीचे रहेगा आई थिंक 10 बचा। यस, तो W2 विल बी व्हाट, 0.2 इंटू 10, तो आंसर रहेगा 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ NaOH, दैट इज द सॉल्यूट ऑफ दीज सॉल्यूशंस। ओके, तो 2 ग्राम NaOH विल बी नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग दिस 0.2 molar solutions। देन
for the next example. Next example, yes. Calculate the next example is calculating normality. Normality capital N find करना है. Prepared by dissolving 9.8 ग्राम of H2SO4. मतलब क्या है, W2 हमारा सॉल्यूट है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम H2SO4 इन yes. Volume given है, yes. Volume of the solutions is 500 ml. नॉर्मालिटी गिवन है, नॉर्मालिटी यस नहीं, नॉर्मालिटी क्वेश्चन आस्क है, यस. मोलर मास M2 98 ग्राम पर मोल, यस. बट H2SO4 में क्लियरली वी कैन से दैट H2SO4 में वैलेंसी फैक्टर क्या रहेगा, 2 रहेगा. H2SO4 का सॉल्यूशन है, वैलेंसी फैक्टर रहेगा क्या, वैलेंसी फैक्टर विल बी 2. ओके, क्यों कि H2SO4 में क्या रहता है, H2SO4 में क्या आयंस पर 2H प्लस प्रेजेंट होता है, आयनाइज होता है, और SO4 पर चार्ज क्या रहता है, 2 माइनस. तो वैलेंसी फैक्टर N विल बी 2. ओके, तो वी विल गेट दी फॉर्मूला नॉर्मालिटी इक्वल टू व्हाट, 1000 इंटू W2 क्या है, W2 9.8 ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट. यस, इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, तो वैलेंसी फैक्टर से हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास. तो इक्विवेलेंट मास रहेगा, मोलर मास है 98, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी. तो मोलर मास है 98 डिवाइड बाय वैलेंसी है, तो रहेगा 49 ग्राम पर मोल. यस, तो मोलर मास नहीं, ग्राम पर इक्विवेलेंट है ना, तो ग्राम पर मोल नहीं रहेगा, ये रहेगा ग्राम पर इक्विवेलेंट्स. यस, तो उसका रहेगा ग्राम पर इक्विवेलेंट, दैट इज 49. तो हमारा इक्विवेलेंट वेट रहेगा 49 इंटू वॉल्यूम है हमारा 500 ml. तो नॉर्मालिटी हो जाएगा, यस. तो नॉर्मालिटी आराम से हो जाएगा, यस. 1000 इंटू 9.8, 9.8 इक्विवेलेंट वेट रहेगा हमारा, यस, दैट इज अभी हमने फाइंड किया 49, 500 एज इट इज, ये 2 सा रहेगा. ओके, तो नॉर्मालिटी अपना आ जाएगा, क्लियरली वी कैन से दैट 2 एज इट इज 10, 2/10, यस. तो 4/10 आ जाएगा, दैट इज व्हाट 0.4 नॉर्मल. ओके, तो नॉर्मालिटी अपना सॉल्यूशंस का आ जाएगा 0.4 नॉर्मल. अगर अभी अभी इसका कंपैरिजन करेंगे अभी हम मोलारिटी से, तो मोलारिटी में क्या रहेगा, इक्विवेलेंट वेट की जगह रहेगा मोलिकुलर वेट. तो मोलिकुलर वेट है 98. तो अभी हम वो वाले अपने रिलेशन से फाइंड कर ही सकते हैं कि नॉर्मालिटी इक्वल टू N इंटू मोलारिटी. तो नॉर्मालिटी है 0.4 और वैलेंसी है 2, तो मोलारिटी विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मालिटी, मतलब 0.4/2, दैट इज व्हाट 0.2 मोलर. यस, तो मोलारिटी विल बी 0.2 मोलर, और अभी हमारा नॉर्मालिटी रहेगा 0.4 नॉर्मल. ओके, तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यस दिस, क्या हाउ मेनी mls मतलब वॉल्यूम, वी हैव वॉल्यूम आस्क्ड. ओके, हाउ मेनी mls ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 are needed to completely neutralize 50 ml of 0.2 normal NaOH. यस, नॉर्म इसका हम ही सॉल्यूशन कर सकते हैं. M1 इसका फॉर्मूला है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, M1V1 इक्वल टू M2V2. ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन. एंड सेम अगेन विद द नॉर्मालिटी, N1V1 इक्वल टू N2V2. ये वाला फॉर्मूला नोट करना ही है आपको.
लॉट यूज होता है इसका, यस, दीज आर यूजिंग इन द लॉट ऑफ द क्वेश्चंस, यस। अभी हमारा, यस, फर्स्ट सिचुएशन का है n1, n1 इक्वल टू 0.1 नॉर्मल, v1, हाँ v1 वी नीड टू फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क, n2 इक्वल टू 0.2 नॉर्मल एंड v2 इक्वल टू 50 ml, यस। तो अभी हम फॉर्मूला पुट करेंगे n1 v1 इक्वल टू n2 v2, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। तो n1 रहेगा हमारा 0.1, v1 रहेगा क्वेश्चन मार्क, वी नीड टू फाइंड आउट, n2 इक्वल टू रहेगा 0.2 and v2 रहेगा 50। so clearly by the some calculation we can get the v1, these are 10 डिवाइड बाय 0.1, तो आंसर रहेगा हमारा, एक मिनट, आंसर रहेगा हमारा 100 ml, मतलब 100 ml of v1, 100 ml of these H2SO4 is needed to completely neutralize, okay। then next example, इसको हटाना पड़ेगा, इसको कर दो। So if 100 ml of 0.6 normal is diluted by adding this is water, normality, ये सेम, हाँ, अगेन डाइल्यूटेड का एग्जांपल है कि 100 ml of 0.6 normal HCl solutions adding 200 ml of distilled water, then what is the normality of the final product, okay। तो फर्स्ट कंडीशन का n1 v1 गिवन है, इट इज v1 n1, तो v1 इक्वल टू व्हाट 100 ml, ओके, n1 इक्वल टू 0.6 नॉर्मल। तो सेकंड कंडीशन में क्या रहेगा, 200 ml ऑफ ओनली डिस्टिल्ड वाटर इज एडेड, तो n2 दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट, एंड v2 विल बी व्हाट, v1 प्लस v2 ना, हाँ, 100 प्लस 200 दैट इज फाइनल वॉल्यूम विल बी व्हाट 300 ml, 300 ml, यस। तो फॉर्मूला वही सेम, n1 v1 इक्वल टू n2 v2, तो n1 रहेगा अपना, यस, 0.6, v1 है 100 ml, n2 we need to find, yes, मैंने v2 is 300, yes। तो सेम कैलकुलेशन से आ जाएगा आंसर अपना n2 का, दैट इज व्हाट 60 डिवाइड बाय 300, n2, तो n2 ठीक है, फिर से लिखता हूँ इसको, एक मिनट। तो फॉर्मूला पुट करेंगे n1 v1 इक्वल टू n2 v2, ओके। तो n1 क्या है, यस 0.6, v1 है अपना 100 ml, n2 रहेगा अपना, यस वी नीड टू फाइंड आउट, एंड v2 रहेगा 300। तो इसका मल्टीप्लीकेशन है, इसका, ओके। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम नॉर्मालिटी ऑफ फर्स्ट सिचुएशन में दिया होता है नॉर्मालिटी और वॉल्यूम, या फिर मोलारिटी और वॉल्यूम गिवन होता है, उसका सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मालिटी और एडिंग भी एडिंग होता है, एडिंग वाटर। तो सेकंड सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड मतलब फाइनल सॉल्यूशंस का मोलारिटी और नॉर्मालिटी फाइंड करना होता है, तो उसमें हम यूज करते हैं दिए वाला फॉर्मूला, दैट इज व्हाट n1 v1 इक्वल टू n2 v2, सेम सेम गोज विथ मोलारिटी आल्सो, एक मिनट, n1 v1 इक्वल टू n2 v2, एंड सेम गोज विथ मोलारिटी का भी सेम रहता है कि अगर फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन
वॉल्यूम V1 गिवन है, अगर हम वाटर ऐड करते थे, वाटर अगर हम डाइल्यूट करते तो सेकंड कंडीशन का मोलारिटी चेंज हो जाएगा, और N2V2 M1V1 इक्वल टू M2V2 वी नीड यूज, एंड सेम N1V1 N2V2 यूज करना पड़ेगा। तो इसका हम निकाल सकते हैं 60 बाई, दैट इज 60/300, दैट इज 60 रहेगा इसका, और नीचे रहेगा 300, तो कट हो जाएगा 5 सा, तो 1/5, तो N2 विल बी व्हाट, N2 हमारा आ जाएगा 1/5, दैट इज 0.2 नॉर्मल। तो यस, तो बाय द एडिंग ऑफ 200 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, द फाइनल इसकी मोलारिटी नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, 0.2 नॉर्मल आ जाएगी। ओके, फ्रॉम द 0.6 नॉर्मल ऑफ HCl, दैट इज आंसर। नेक्स्ट जाएंगे, यस, परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल। चलो अभी ये लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे अभी। यस, तो लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज व्हाट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड का है। नाइट्रिक एसिड इज द सॉल्यूट, सॉल्यूट है हमारा नाइट्रिक एसिड, इसका HNO3 है, मोलिकुलर मास इज 63 ग्राम पर मोल, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट 6.3% बाय मास, मतलब व्हाट परसेंटेज मास गिवन है 6.3%, मतलब व्हाट कि अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं, अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 6.3 ग्राम अपना रहेगा सॉल्यूट, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में रहेगा हमारा 6.3 ग्राम सॉल्यूट, मतलब HNO3। इसको ही हमें एज्यूम करके अपना न्यूमेरिकल करना होता है। परसेंटेज में, परसेंटेज अगर आए, अब जब भी परसेंटेज आए तो अभी 100 में से ही निकालना होता है, तो 100 ग्राम होता है टोटल, और जितना परसेंटेज गिवन है वो होता है सॉल्यूट का ग्राम। ओके, तो अगर हम टोटल लेते हैं 100 ग्राम, तो उसका लेते हैं 6.3 ग्राम ऑफ HNO3। अभी क्या करना है, फाइंड करना है मोलालिटी। ओके, तो मोलालिटी फाइंड करेंगे, स्मॉल m इक्वल टू व्हाट, नंबर्स ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यस, तो सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़ेगा, सॉल्वेंट का वेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा W1 निकालना पड़ेगा। अभी हम टोटल में से डिडक्ट करना पड़ेगा सॉल्यूट का, तो 100 में से डिडक्ट करेंगे 6.3 ग्राम को, सॉल्यूट को निकालेंगे, तो वी विल गेट द मास ऑफ द सॉल्वेंट, दैट विल रफली अराउंड 93.7 ग्राम। ओके, तो मोलालिटी में W1 ही यूज होता है। ओके, करते हैं। यस, तो मोलालिटी में 1000 इंटू W2 क्या है, 6.3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यूजेड, हाँ मोलर मास है 63 इंटू 93.7, यस ग्राम, हाँ तो ग्राम ही है, यस, तो दैट इज द आंसर, दैट विल बी आंसर, गिव द आंसर ऑफ मोलालिटी। तो मोलालिटी का आंसर रहेगा 1000 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई 63 डिवाइडेड बाई 93.7, तो आंसर विल बी व्हाट 1.067 मोलर, तो आंसर, फाइनल आंसर विल बी 1.067 मोलर, तो इसकी मोलालिटी आ जाएगी 1.067 मोलर। यस, तो ये वाले फॉर्मूले मास परसेंटेज से निकाला है हमने मोलालिटी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर coming in the board exam also and on the good set also, okay, and
नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल बी कवर इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में करेंगे। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड में और सेट में भी आते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you.